اللہ قرآن سورہ ہود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں مس کرے گی، چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنا حمایتی نہ بناؤ، یہ شرک ہے۔ تمہاری حمایت، تمہاری مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کا محبوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 113 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور نافرمانوں کے ساتھ اپنے تعلق استوار نہ کرو۔ معذرت کے ساتھ ہمارا آج کا نوجوان سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر اپنا فیوچر کیریئر بناتا ہے۔ میری طرف ذرا توجہ رکھیے گا، آج ہم نوجوان کی کردار سازی پر بات کرنے کے لیے پہلا ٹاپک ہے جی آئیڈیل پرسنالٹی۔ ہر نوجوان کوئی رجب بٹ کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی سمجھتا ہے، کوئی ذوالقرنین کو سمجھتا ہے، کوئی کسی ٹک ٹاکر کو سمجھتا ہے، کوئی یوٹیوبر کو سمجھتا ہے، کوئی کسی بندے کو کہتا ہے یہ میری فیورٹ پرسنالٹی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے اس شخص کی پیروی کرو، اس شخص کے آئیڈیل بنو، اس شخص کو فالو کرو جس نے اللہ کی طرف رجوع کی ہے۔ بینگ ٹو مسلم ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور ساڈا خیال ہونا چاہیے ساڈا آئیڈیل شخصیت، ساڈی پسندیدہ شخصیت، ساڈی ہر دل عزیز شخصیت یا اللہ ہو یا اللہ کا رسول ہو یا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے اصحاب محمد ہوں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تین شخصیت ہیں جن سے بچہ سبق حاصل کرتا ہے۔ پہلے کون ہے جی؟ ماں باپ۔ دوسرا کون ہے جی؟ استاد۔ تیسرا کون ہے جی؟ معاشرہ۔ ہمارے معاشرے کا نوجوان نہ ماں باپ سے کچھ سیکھ رہا ہے، نہ اساتذہ سے کچھ سیکھ رہا ہے، اور نہ وہ معاشرے کے اچھے لوگوں کی سنگت میں جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان فیورٹ پرسنالٹی کے اندر چار چیزیں دیکھتا ہے، آؤ ذرا وہ چار چیزوں پہ بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی نظر میں۔ سب سے پہلے دیکھتا ہے اس میں مال و دولت ہے کوئی نہیں، نمبر دو عہدہ اور منصب، نمبر تین حکومت اور اقتدار، نمبر چار حسن و جمال۔ اور یہ چار چیزیں آج کے نوجوان کو، یہ چار چیزیں جہاں سے ملیں گی وہی اس کا آئیڈیل پرسنالٹی ہوگا۔ اسلام کہتا ہے فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کر، اس کا رستہ اختیار کر جس نے اللہ سے رجوع کی ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ نوجوان جس ٹک ٹاکر کے زیادہ فالوز کے پیچھے دوڑتا ہے وہ غلط بات کرے صحیح بات کرے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نوجوان کے پاس علم کوئی نہیں، علم کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر نے کہا امیر معاویہ کو نعوذ باللہ من ذالک، رجب بٹ نام ہے ٹک ٹاکر کا، جب کہتے ہیں حسب نسب کو، ابا و اجداد کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के दो तरह के नौजवान अमीर तरीन लोग हैं। फरमाया कौन सा? फरमाया पहला जिसे फजर की सुन्नतें मिल जाए और दूसरा जिसे असर की सुन्नतें मिल जाए। दोस्तों मेरे नौजवानों, हमने डॉलर नहीं देखने, ये दुनिया की दौलत यहीं की यहीं रह जाएगी। मैं कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह सूरह बनी इसराइल में कारून, फिरौन, हामान की दौलत का, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ये वो दुनियादार दौलतमंद लोग हैं। फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून, नमरूद, ये वो बदबख्त दुनियादार दौलतमंद हैं। अगर किसी ने किसी दौलतमंद की दौलत से मुतासर ना हो तो वो कारून को देख ले। अगर किसी ने दुनिया के किसी ओहदे, मनसब और दुनियादारी हुकूमत को देखना हो, फिरौन का फ्यूचर देख ले। अगर किसी ने हुस्न जमाल देखना हो, खूबसूरती देखनी हो, हामान का फ्यूचर देखो। मिस्र के अजायब घर के अंदर फिरौन की डेड बॉडी को देखो। फरमाया तुम दुनिया के हुस्न जमाल, माल दौलत, ओहदो, मनसब और हुकूमत से मुतासर होते हो। फरमाया ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे ते कोई जावे, किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे। ते सानू तख्त हजारे दी लोड़ कीए, सानू तख्त हजारे दी लोड़ कीए ते नाले की लगे शहर भपोल दे नाल असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसे होर दे नाल। और नौजवानों, आज के मुसलमान को चाहिए वो आइडियल पर्सनैलिटी अपने अल्लाह, अपने नबी और असहाब मोहम्मद के साथ रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अम्मा सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला युहिब्बु रजुल कौमन इल्ला जालहुल्लाहु माअहुम, जो किसी कौम से मोहब्बत करे अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पसंदीदा कौम के साथ उसका हिसाब किताब फरमाएगा। अगर अच्छे बंदे के साथ रहोगे, अच्छे बंदे की निस्बत के साथ रखोगे तो क़यामत के दिन अच्छे लोगों की निस्बत मुयस्सर होगी। और अगर बुरे बंदों की निस्बत के साथ हो जाओगे तो फिर बुरे लोगों की निस्बत मिलेगी। दुनिया के बड़े बड़े लोग दौलतमंद से मुतासर होते हैं। मैंने आपको कारून की बात की। कुरान में अल्लाह फरमाता फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। फिर वो पूरी सज धज के साथ अपनी कौम के सामने निकला। किसकी बात हो रही है? सुनो जरा। हम लोग हुस्न जमाल से मुतासर होते हैं। हुस्न जमाल आर्जी चीज है, वक्त के साये के साथ साथ जवानी भी ढल जाती है, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कारून को अपना आइडियल ना बनाओ। कारून की दौलत आर्जी, कारून की ये दुनियादार की जाहो जला आर्जी। इसने मर के मिट जाना है, खाक में मिट जाना है, ये अंधेरी कब्र में चले जाएगा। कब्र रोजाना तुझे यही करती है पुकार, ओए बंदिया मुझ में कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं अंधेरी कोठड़ी, मुझ में सुन तुझे वहशत होगी बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, आमाल लेता आएगा, तेरा फन ओहदा तेरा काम आएगा न सरमाया तेरा। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने वाले से रिश्ता जोड़ ले। अल्लाह की तरफ रजू करो,
اس کی بندگی کی طرف جو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے سچ نہیں بولا جاتا، ہم سے حلال حرام کی پہچان نہیں ہوتی، اور نوجوانوں میرے بھائیوں دوستو ہم سے حقیقت حال میں سچ بیان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا سارا وعد و نصیحت کی، کہا یہ قارون کے محلات، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ثروت، یہ جاہ و جلا، یہ پیسہ، قارون کے خزانوں کی چابیاں جو تم اونٹوں کے کجاووں میں لدے ہوئے دیکھ رہے ہو، اس سے متاثر نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے بھئی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق کی فراغی عطا فرماتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یا رسول اللہ کون جائے گا؟ فرمایا میری امت کے مساکین سب سے پہلے جنت میں روانہ ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نا پیسہ بہت تھا، بے قرار ہوئے کہ کہا محبوبہ سونیا واللیدیاں زلفاں والیا یا رسول اللہ ما زاغ البصر چشمان مقدس والے محبوبہ ہم پر بھی نظر کرم فرماؤ۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف جتنا مال ہے تم اس کا حساب کتاب دے کر پھر جنت میں روانہ ہو جاؤ گے۔ پتا چلا جتنا مال ہوگا اتنا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ مسخ کر دے گی اور آگ میں بار بار الٹے منہ ڈالے جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ بار بار کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کاش ہم نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی ہوتی، کاش ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہوتی، کاش ہم نے جھوٹ کم بولا ہوتا، مال تول میں کمی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں آج کے دور میں نیکیاں کرنی اتنی مشکل نہیں جتنا نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ نبی پاک کی مجلس لگی ہے صلی اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس ترین نوجوان کون ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درم و دینار نہیں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے میری امت کا مفلس ترین نوجوان کون ہوگا؟ یا رسول اللہ جس کے پاس درم و دینار مال و دولت پیسے نہیں ہوں گے۔ فرمایا نہیں، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، میزان عمل پر رب کائنات نیکیاں اور گناہ پلڑے میں ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، فرمایا اس کے نامہ مال میں حج، نمازیں، عبادتیں، زہد و تقوی، نیک اعمال، حج، عمرے اور بڑے بڑی سخاوتیں، جہاد، قربانیاں، بڑے اعمال ہوں گے۔ منادی اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کا نامہ اعمال تل رہا ہے، یا ایھا الناس اے لوگوں ہے کوئی اس سے اپنا حق لینے والا؟ فرمایا لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو کے دربار خدا میں اللہ کے پاس آئے گا۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں دے فرشتوں ان سے پوچھو کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہماری غیبت کی ہے، ہماری چغلی کی ہے، ہمارا مال دبایا ہے، مولا آج میدان معاشر کا ہم انتظار کر رہے تھے، یا اللہ میدان معاشر میں نا آج ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں یہ پہلے سائل کو بلایا جائے، سائل آئے گا۔ اب نامہ اعمال میں سوائے نیکیوں کے دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں امتی کے حالات پہ۔ روتے روتے کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ محبوب کی آپ دیدہ تھی آنکھیں، چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اس میرے امتی کے نامہ اعمال سے حج نکالے جائیں گے، حج نکال کے جس کی غیبت کی ہوگی اس کو دیے جائیں گے۔
फरमाया फिर नामा अमाल से उम्रें निकलेंगे, फरमाया फिर नमाजें निकलेंगी, फिर फरमाया दूसरा साइल आएगा, या अल्लाह मेरा हक दबाया था, फरमाया उसके नामा अमाल से फिर सखावत निकाली जाएगी, नेकियां निकाली जाएंगी, हज निकाले जाएंगे, ज़कात निकाली जाएगी। करते करते अभी साइल बाकी होंगे, नामा अमाल में नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह याज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मैं नामा अमाल में नेकियां खत्म, लोग अभी बाकी खड़े होंगे। वो जो साइल होंगे ना जिन्होंने दुनिया में सब्र किया होगा, उन सब सब्र करने वाले साबिरीन के नामा अमाल से गुनाह निकाल के ये जन्नती इनके नामा अमाल में डाले जाएंगे, वो सारे जन्नत में चले जाएंगे, ये जहन्नुम में जा रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, इतना रोए दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन नौजवान वो होगा जो दुनिया से नेकियां लेके जाएगा, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में बेसरो सामान कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम नौजवान किरदार साजी के लिए अपना आइडियल पर्सन जब भट्ट को बनाता है, कोई टिकटॉकर को बनाता है, कोई किसी को, कोई दुनियादार सिंगर, कोई कलाकार, मौसीकार, अदाकारों को बनाता है। नौजवान रसूलुल्लाह के असहाब को अपना आइडियल बना, हजूर की अहले बैत को अपना आइडियल बना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपना आइडियल बना। एक जवानों इस्लाम हमें दावत फिक्र दे रहा है, हमें चाहिए हम इन चीजों का ख्याल रखें। अपनी आइडियल पर्सनैलिटी, औलिया अल्लाह है वो कौन है, अस्हाबे मोहम्मद है वो कौन है, अहले बैत अतहार है वो कौन है, जिनके मुतल्लिक़ कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो नबी पाक की जात है। हमें चाहिए अपनी थोड़ी सोच बदलें। ओए नौजवानों, अपनी सोच बदलो, अपना मेयारी जिंदगी बदलो, अपना तरीका कार बदलो, दीन का इल्म सीख लो, ओए कुरान का तर्जुमा पढ़ लो। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक पिछले दिनों एक टिकटॉकर ने हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक तबर्रा किया। कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता। और तूने नबी का फरमान सुनाता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जामे तिर्मिज़ी बाबू मनाक़िब मुआविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 169। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन महदी बिही, ऐ अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ हादियो महदी बना और इस मुआविया के जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। पाक जिसके लिए दुआ करें। आज 14वीं 15वीं सदी का नौजवान कहता है शरकपुर शरीफा ने मेरे वास्ते दुआ की थी, मैं भी गुड दुआमा करदा। दाता अली हजवेरी के आस्थाने पे मजावरों ने मेरे लिए दुआ की, मंजूर नजर हो गया, मकबूल हो गया। बरी इमाम सरकार ने मेरे लिए दुआ की, गोलरा शरीफ वालों का मंजूर नजर हो गया। हजरत अमीर मुआविया के लिए किसी पीर ने नहीं, पीरों के पीर, दस्तगीरों के दस्तगीर हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं क्या सोनिया महबूबा मैंने 3 चीज़ें दे दो। नबी पाक ने फरमाया एक दुआ मैंने मांगी थी, वो दुआ की थी व मुआविया तो तजालुहु कातिबन बैन यदैका काला नाम, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे पुत्र को लिखना पढ़ना आता है, मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन, मेरे बेटे को लिखना पढ़ना आता है, या रसूल अल्लाह एक नजरे करम कर दें, मेरे पुत्र को अपना कातिब बनाने के लिए कबूल फरमा दें। हजूर ने फरमाया काला नाम ठीक हो गया, ले आओ मुआविया फिर उम्मत मुस्लिमा के कातिबाने वही का दर्जा रखने। यारो हजूर की मजलिस में दुआ होती रही, ये वो तो आस्थाना है, ये वो दरबार है। हजरत सैयदा ज़ैनब का हमल गिराने वाला एक वैशी, हजरत अबी आस के कहने पे सैयदा ज़ैनब का हमल गिराने वाला, ऊँटनी पे जब सैयदा ज़ैनब अबी आस के कबीले से बैठ के मक्का आ रही थी, एक हबशी ने दूर से तीर मारा,
सैयदा ज़ैनब गिरी, हमल गिर गया। फतह मक्का, ओ नौजवानों सुनना जरा, फतह मक्का का मौका है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, लौंडी दौड़ के आगे बढ़ी, कहा या रसूल अल्लाह, ये वैसी है, या रसूल अल्लाह इसको जानिए, इसे देखिए, सैयदा ज़ैनब के बच्चे का कातिल है। रहमतुल लिल आलमीन, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। आज के दिन जो अमान मांगे, जो अपने घर का दरवाजा बंद करे, जो अपना हथियार डाल दे, अभी सुफियान के घर आ जाए, काबे में आ जाए, आज के दिन अल्लाह का फरमान है, मुस्तफा की जुबान से निकला है, आज के दिन उसे माफ कर दिया जाएगा। नौजवानों, इस्लाम बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुहज़्ज़ब, बड़ा प्यारा, बड़ा दिलरुबा। और हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आओ मोहब्बत के साथ इस अहले सुन्नत व जमात के इस खूबसूरत साहिबान के नीचे आ जाओ। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं घर में थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खाना से फरमाया, उम्मे हबीबा से फरमाया, दरवाजा देखो कौन आया है। फरमाती मैं गई, जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए। अर्ज की महबूबा मुआविया आए, फरमाया आने दो। हज़रत मुआविया दाखिल हुए तो उनके कानों में कलम लगा हुआ था इधर, जिससे अभी तक लिखा नहीं गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, का मुआविया ये कलम कैसा है? अर्ज की या रसूलल्लाह, ये मैंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात लिखने के लिए लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे नबी की तरफ से तुम्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। इतनी बात की, फिर फरमाया, खुदा की कसम मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की वही लिखने के लिए कातिब बनाया है, और मैं छोटा बड़ा कोई भी काम अल्लाह की वही के बगैर नहीं करता। ये मुस्तफा का फरमान है। फरमाया मैं कोई भी छोटा बड़ा काम अल्लाह की वही के बगैर। और यार जो अल्लाह की वही लिखने वाला होगा और मुस्तफा के सामने बैठ के लिखने वाला होगा और कुरान लिखने वाला होगा और मुस्तफा का फरमान लिखने वाला होगा, हम उस पे लानत कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते। लेकिन जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करेंगे। फिर फरमाया, ए मुआविया, अगर तुम्हें खिलाफत अता की जाए तो क्या ख्याल है? हजरत उम्मे हबीबा खड़ी हुई और रसूलुल्लाह के सामने आकर बैठ गई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खिलाफत भी अल्लाह की तरफ से होगी? फरमाया हाँ, लेकिन इसमें परेशानी होगी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की कि आप इनके लिए दुआ फरमाएं। फिर महबूब ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुआविया को हिदायत याफ्ता बना और इसे परेशानियों से दूर फरमा, और ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मग़फ़िरत फरमा। और फिर साहिबे शिफा शरीफ हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफ़ाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन काना, जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। लिहाजा हमें चाहिए हजरत अमीर मुआविया से प्यार करो, क्योंकि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला जो मैंने जनाब अमीर मुआविया से सुलह की है। अल्लाह हमें जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी को समझने की तौफीक दे। यही पैगाम अल्लाह के वलियों ने दिया है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने यही तरबियत की है। मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी तो बड़ी दिलरुबा है, बड़ी बाकमाल है। दाताली हजवेरी के आस्थाने पे चिल्ला काटने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर का नाम हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है, और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर का नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक ही बात करने लगा हूं, बात खत्म कर दी है। मैंने पहले अर्ज की है, तीन हस्तियां हैं तरबियत की, वालिदैन, दूसरी उस्ताद, और तीसरी और आखिरी मुआशरा। आओ माँ बाप की तरबियत की बात कर रहा हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह फरमाते, 6-7 साल अभी नहीं हुई थी, माँ ने नमाज पढ़ती,
تو माँ मुझे अपने साथ खड़ा कर लेती। बच्चों की आदत, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मलफूजात बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर में लिखा है, माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। कामी क्या मिलेगा? अब माँ दरवेश थी, का पुत्र शक्कर मिलेगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के साथ, आज की माँ टॉफी चॉकलेट ही दे दो। हम स्कूल जाने वाले नौजवान को तो 100 रुपया निकाल के देते हैं, नमाज पढ़ने वाले को 10 रुपए क्यों नहीं देते, 20 रुपए क्यों नहीं देते? कहो जाओ दादा अबू के साथ नमाज पढ़ के आओ, चाचू के साथ नमाज पढ़ो, पैसे मिलेंगे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ने लगा, शक्कर मिलना शुरू हो गई। माँ छोटी सी पुड़िया लेती, शक्कर डालती, मुसल्ले के नीचे रख देती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, बातें जिंदगी के ये शब और रोज गुजरने लगे, मैं नमाज मुकम्मल करता, मुसल्ला उठाता, पुड़िया निकलती, खा लेता, खुश होने, वक्त गुजरता रहा। फरमाती माँ को ना पिंडू दूर कहीं जाना काम पड़ गया, माँ तशरीफ ले गई। फरमाया रात को माँ ने आना नहीं था, जिसने मुसल्ले के नीचे पुड़िया रखनी होती थी। कहा खुदावंदा मालिक कौन है, ए रब्बे जुल जलाल, ए वादउला शरीक रब, ए अल्लाह तेरी बंदी का छोटा सा सवाल है, हर रोज अपने बच्चे को तेरी बारगाह में सर पर सुजूद करने के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती थी। मौला अब मैं दूर आ चुकी हूँ, आज अगर शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे से ना निकली, मेरे पुत्र का मान ना टूट जाए, मेरा बच्चे का मान ना टूट जाए, मौला आज गैब से मेरी मदद फरमा। ओ लोगों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते माँ चली गई, मैं नमाज पढ़ता रहा। फरमाया तब माँ वापस आई, बच्चे से मुलाकात हुई, बच्चे से कहा बेटा नमाज पढ़ी? मुख्तसर बात करता हूँ। कहा अम्मी नमाज पढ़ी? कहा बेटा शक्कर मिल गई थी? कहा अम्मी मिल गई थी, लेकिन एक बात है। माँ बेकरार हो के कहने लगी बेटा क्या बात है? कहा अम्मी जब आप शक्कर की पुड़िया देती थी उसका लुत्फ और मजा और होता था, अब जो शक्कर की पुड़िया निकल रही है रब्बे काबा की कसम, उस शक्कर की पुड़िया की लुत्फ और मजा और होता है। बारगाह में सजदारे हुई, कहा बरम रखा मालिक, तू मेरे बच्चे को वक्त का वली बना, मेरे बच्चे को अपना दोस्त बना। अभी फरमाती ये दुआ करनी थी। उस दिन से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का लक़ब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कायनात में होने लग गया। हम आइडियल पर्सनैलिटी अपने माँ बाप, अपने असातिज़ा और मुआशरे में अच्छी सोहबत रखने वालों को हो, क्योंकि चंगे बंदे दी सोहबत यारो ओए जिमें दुकान अतारा, खुशबू पावे मुल ना लइए, हुल्ले आन हजारा, ते पैड़े बंदे दी गंदे बंदे दी सोहबत यारो, जिमें दुकान लुहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए, छिनका पैन हजारा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।